क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या इंग्लिश बहुत ज़रूरी है? इंग्लिश को कैसे सीखें? These all the questions we are going to discuss on this class. Okay, so very welcome everyone. This is me Arun, life skill and language tutor, and I so most welcome everyone to come and click the videos. Thank you so much everyone for coming here, for clicking the video, and we are going to start how to start speaking in English. बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, हाउ कैन आई स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब मैं बोलना कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ. हाउ कैन आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, मैं कम्युनिकेट करना कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ. दीज ऑल द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस वीडियो. आई थिंक इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में दे रखी है. यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो. Then you need to like, so you have to like, otherwise you don't have to like and don't have to subscribe. But if you want to learn English language from basic to advanced, so you have to keep it watch. When you watch the videos, maybe it will provide you too much knowledge while speaking, while thinking, while doing many more of things. But you have to see that after you can observe yourself, you can change yourself. By the way, without wasting our time, we are going to discuss on this class what we have to do in a starting time for spoken English, for speaking English. मैं बेसिक में अभी जब स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैं क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती आने के लिए. सबसे पहले तो आपको मैंने जो प्ले लिस्ट में वीडियोस दे रखी है उसे आप देखेंगे, उससे आपके बेसिक लेवल थोड़ी सी कंफर्म हो जाएगी. फिर जब हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे आप आज हैं, सो यहाँ से जो हमारा स्टार्टअप होता है, हमें जो लर्निंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो लिसनिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है. इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन आफ्टर यू कैन बी अ गुड स्पीकर. अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं. सो दैट्स वाई फर्स्ट सजेशन मेरा ये है, यू हैव टू लिसन केयरफुली द वर्ड्स and start watching and listening something English things, like start reading some books and start communicating with the person. ठीक है, कुछ ऐसे बात को स्टार्ट करेंगे. अब कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो वोकेबलरी एंड वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन दिस टाइम. नाउ योर वोकेबलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज. द इम्पॉर्टेंस इज दैट यू हैव टू नीड टू लर्न ओनली वर्ब्स. Verbs, it means जो आप काम करते हैं, आना जाना, खाना उठना, बैठना, मारना पीटना, these are all the things. So it's called verbs. So you have to learn only verbs, not words, because when you focus on word and then your all focus goes on like grammars. So I personally believe that if you are focusing on grammar, so I think it will not make you speak English, because many of people have too much idea about the grammars, but they cannot speak English language because they did not know that how to do the things. So that's why they couldn't speak English as a fastly. So this is my opinion that if you want to be a speaker, so you have to only practice to speak. You have to also shoot your video, and you have to also start writing something different and try to communicate with anyone who know about the English language. That thing give you too much knowledge to improving yourself. So maybe this video is very beneficial for you. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा है तो so you have to like, share and subscribe, because if you subscribe, so it is beneficial for me and also beneficial for you, because when I upload any videos, so you can get firstly. So that's why you have to do this. Okay, in this class also we have to practice something like if you have any questions, you can ask in a comment and I'll give you answer, but I'm going to ask you some question, try to reply as मैंने कहा यहाँ आओ, मैंने क्या कहा, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ बैठो, सिट हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, यहाँ मत पढ़ाई करो, डोंट स्टडी हियर. तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या शूट कर रहे हैं, व्हाट आर यू शूटिंग,
आप टिप्स दे रहे हैं, आर यू गिविंग टिप्स? हाँ मैं टिप्स दे रहा था, यस आई एम गिविंग यू टिप्स। व्हाट, सॉरी, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज? प्लीज एवरीवन कीप इट इन योर माइंड एंड स्टार्ट स्पीकिंग विथ मी, because when you speak then you learn, when you speak then you learn. So try to speak with me and with my videos. Okay, so बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग, आते रहिए, कीप ऑन कमिंग, देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग, मुझे देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग टू मी, इंग्लिश सीखते रहिए, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। एंड जाइए, गो आउटसाइड, अंदर आइए, कम इन, ठीक है। एंड मार्केट जाइए, गो मार्केट, यहाँ मत आओ तुम, यू डोंट कम हियर। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मार्केट। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? हाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यस आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। क्या आप बाहर जाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड? यस आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड। नो आई वुड नॉट लाइक टू गो आउटसाइड। मतलब जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका जवाब हम यस या फिर नो में ही देते हैं। अदरवाइज एक इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव चीज़ें होती हैं, जो डबल इंट्रोगेटिव चीज़ें होती हैं उसमें ये होता है कि जो पहले WH वर्ड कुछ ना कुछ आएंगे, देन प्लस में इंट्रोगेटिव वाले भी डू, डज, हेल्प वर्ब्स आते हैं। सो दैट्स व्हाई वी यूज देयर WH. सो इन अ WH वर्ड वी डोंट हैव टू यूज yes and no type answer, we have to give completely answer. So maybe thank you so much everyone for watching the video. This class will be over on right now and we will meet in the next video. Thank you so much for watching everyone.